Hello dear students, already we have started chapter number 4, retirement of partner, and up to now we have finished various accounting adjustments like calculation of new profit sharing ratio and gain ratio. Then we have finished or we have discussed transfer of general reserve fund among the partners. After that we have discussed about transfer of accumulated profits and losses among the partner. Then we have discussed revaluation of assets and liabilities of partners or partnership firm after retirement of partner. Now in our previous video we have discussed about goodwill and its treatment. Now in our today's lecture we are going to discuss about adjustments or rearrangement of capital of continuing partner in their new profit sharing ratio. So our today's topic is adjustment and rearrangement of capital of continuing partner in their new profit sharing ratio. ओके सो अगर कोई पार्टनर रिटायर्ड होता है तो कंटिन्यूइंग पार्टनर अपने कैपिटल को कैसे एडजस्ट करते हैं या कंटिन्यूइंग पार्टनर का कैपिटल का रीअरेंजमेंट कैसे किया जाता है वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. बट बिफोर दैट वी विल सी और वी विल डिस्कस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और ट्रांजैक्शंस व्हिच आर रिकॉर्डेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किन किन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है वो आज हम पहले डिस्कस करेंगे. ओके एंड देयर आफ्टर वी विल डिस्कस अबाउट एडजस्टमेंट एंड रीअरेंजमेंट ऑफ कैपिटल ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी partners capital account and transaction recorded in partners capital account. Now before first of all in partners capital account credit side we record opening balance of capital. पार्टनर्स का जो ओपनिंग बैलेंस होता है कैपिटल का वो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे. नाउ दैट ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल वी विल गेट फ्रॉम लास्ट ईयर बैलेंस शीट. आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया जाएगा जो लास्ट ईयर का होगा और उसके नीचे कुछ एडजस्टमेंट दिए जाएंगे. ओके सो फ्रॉम लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट वी विल गेट कैपिटल ऑफ पार्टनर एंड दैट विल बी अवर ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल. सो पार्टनर का ओपनिंग बैलेंस जो होगा कैपिटल का वो हम कहा रिकॉर्ड करेंगे. इट विल बी रिकॉर्डेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड एज बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. ओके पार्टनर्स ए पार्टनर बी सपोज देयर आर थ्री पार्टनर ए पार्टनर बी एंड सी. सो तीनों का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ओपनिंग बैलेंस वी विल रिकॉर्ड इन credit side of partners capital account. Now in last year balance sheet, particularly in liability side, you will get general reserve fund. Okay, so that will be transfer in partners capital account credit side. Last year के balance sheet में अगर आपको liability side में general reserve दिया है, reserve fund दिया है, okay, और accumulated profit and loss का balance दिया है, तो वो हमें कहाँ transfer करना है? It will be transfer to partners capital account credit side. Already we have made discussion about it in our previous video. Okay, so here we will record by general reserve account. Okay, it will be distributed among all partners in their old profit sharing ratio. If there is reserve fund, so reserve fund will be distributed among all partners in their old profit sharing ratio. If there is accumulated profit, okay, liability side में अगर आपको profit and loss का balance दिया है, so it will be accumulated profit, so it will be distributed among all partners
in their profit sharing ratio. So here we will write profit and loss account, that is accumulated profit. So वो भी हमें तीनों पार्टनर को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से क्या करना होगा, डिस्ट्रीब्यूट करना होगा. नाउ इफ इन असेट साइड, लास्ट ईयर बैलेंस शीट के असेट साइड में आपको प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया हुआ है. ओके, सो इट विल बी कॉल्ड एज accumulated losses. Okay, so accumulated loss will be recorded in debit side of partners capital account. So here we will record accumulated loss. So we will write here to profit and loss account. This is accumulated loss, and that accumulated loss will be distributed among all partners in their old profit sharing ratio. Okay, now sometime in adjustment और एडजस्टमेंट में भी गिवन रिलेटेड टू द गुडविल. ओके, गुडविल से रिलेटेड आपको कुछ एडजस्टमेंट दी जा सकती है, लाइक गुडविल ऑफ द एंटायर फर्म इज रेज्ड एंड रिटन ऑफ. गुडविल ऑफ द एंटायर फर्म इज रेज, पूरे फर्म का गुडविल रेज किया है, एंड आफ्टर दैट इट इज रिटन ऑफ. सो व्हाट विल बी द इफेक्ट इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर गुडविल रेज. if goodwill of the entire firm is raised, पूरे अगर फर्म का गुडविल रेज किया, so we will distribute in all among all partners. So in capital account we will write by goodwill account. This is effect of goodwill is raised. goodwill को हमने रेज किया है. goodwill of the firm, पूरे फर्म का गुडविल रेज हुआ है, so it will be raised among all partner. तीनों पार्टनर में उसे रेज करना है. Now it will be written off among continuing partner in their new profit sharing ratio. So अगर गुडविल हम रेज करके उसे रिटर्न ऑफ करते हैं तो उसका इफेक्ट हमें कैपिटल अकाउंट के डेबिट में शो करना है, गुडविल को रिटर्न ऑफ करने का. सो हियर वी विल राइट टू गुडविल अकाउंट. नाउ दिस गुडविल विल बी रिटर्न ऑफ among continuing partner. Now in our example, three partners are there. Partner A, partner B, and partner C. Now if C has got retired, C retired हो गया, so continuing partner will be A and B. Okay, so goodwill will be written off among the partner A and B in their new profit sharing ratio. Okay, so these are the transactions which are recorded in partners capital account. Okay. Now, after recording this transaction, after solving all adjustments, we will have to close the account. Okay. Now, first of all, before closing partners capital account, we have to close revaluation account. Okay, that is called profit and loss adjustment account. Capital account close करने से पहले सबसे पहले हमें एक और अकाउंट को क्लोज करना होता है, that is called revaluation account. Revaluation account is also called as profit and loss adjustment account. Okay, now in revaluation account we will get either profit on revaluation or we will get either loss on revaluation. revaluation account में हमें either profit हो सकता है या फिर loss हो सकता है. Okay, now that profit in revaluation account will be distributed among all partners in their ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट कब होगा, व्हेन टोटल ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ग्रेटर देन टोटल ऑफ डेबिट साइड. क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है रिवैल्यूएशन अकाउंट का और डेबिट साइड का टोटल कम है, सो देयर विल बी प्रॉफिट, एंड दैट प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड among all partners in their old profit sharing ratio. So that profit on revaluation will be transferred to partners कैपिटल अकाउंट. रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हमें कहाँ ट्रांसफर करना होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड. सो हियर वी विल राइट बाय प्रॉफिट एंड बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट. ओके, इट विल बी transfer to all partners in their old profit sharing ratio. Now if there is a loss on revaluation, okay, if there is a loss on revaluation, revaluation account में loss कब होगा, when total of debit side total of revaluation account
इज ग्रेटर देन टोटल ऑफ क्रेडिट साइड। अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के टोटल से ज्यादा है, डेबिट साइड का टोटल मतलब एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ज्यादा हो गए, क्रेडिट साइड का इनकम का टोटल कम होगा, सो देयर विल बी अ लॉस and that loss will be distributed among all partners in their old profit sharing ratio, and that loss in revaluation account will be transferred to partners capital account. So here we will write loss in debit side of partners capital account. So here we will write to revaluation account. Okay, so this is entry for this posting is done for transfer of loss to partners capital account debit side. Now either you will get profit or loss, दोनों एक साथ तो नहीं हो सकते हैं, but you have to show the effect of profit or loss in partners capital account. revaluation account में अगर चाहे profit हो या loss हो, उसका इफेक्ट आपको कहाँ ट्रांसफर करना है, partners capital account में शो करना है. ओके, so all these transactions we have to record in partners capital account, okay, which are given in question. In question you will get balance sheet of firm, old balance sheet of the partnership firm, then certain some adjustment will be given, and on this basis of partner old balance sheet and on the basis of some adjustment you have to prepare partners capital account. So these transactions are recorded in partners transaction account before making rearrangement of capital or before making adjustment of capital of continuing partner. Okay, now after recording all transaction in partners capital account, continuing partner should adjust their capital or they need to make rearrangement of their capital in their new profit sharing ratio. Now after retirement of one partner, who is going to continue business in future? Only continuing partner or only new partners are going to continue their business. Okay, and that's why continuing it is necessary for continuing partner to rearrange their capital or to adjust their capital in new profit sharing ratio. जब किसी पार्टनरशिप फर्म से कोई पार्टनर रिटायर्ड होता है तो उस पार्टनर के रिटायरमेंट के बाद उस बिजनेस को कौन मैनेज करेगा फ्यूचर में? कंटिन्यूइंग पार्टनर उसे मैनेज करेंगे, उसे रन करेंगे. ओके, एंड दैट्स व्हाई दे नीड टू एडजस्ट देयर कैपिटल or they need to rearrange their capital in new profit sharing ratio. क्योंकि अब बिजनेस को मैनेज दो ही पार्टनर करने वाले हैं, कंटिन्यूइंग पार्टनर करने वाले हैं. पहला वाला पार्टनर चला गया है, वो रिटायर्ड हो चुका है. ओके, सो इसके लिए कंटिन्यूइंग पार्टनर को अपने कैपिटल को अब क्या करना होगा? रीअरेंज करना होगा, अपने कैपिटल को उन्हें एडजस्ट करना होगा इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ओके, now for this purpose, for the purpose of adjustment of account or adjustment of capital or rearrangement of capital, continuing partner total capital of the new firm, अब नया फर्म बनेगा, एक पार्टनर रिटायर्ड हो चुका है, सो न्यू फर्म विल बी देयर. न्यू फर्म मींस पहले 3 पार्टनर थे. ओके, ओल्ड फर्म में C got retired, so 2 partner will continue their business. Okay, so that will be called as a new firm. New firm किसका होगा? पार्टनर A और पार्टनर B का होगा. Okay, so total new capital of the new firm will be divided among the continuing partner now. Okay, before for the purpose of मेकिंग एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल बाय कंटिन्यूइंग पार्टनर को अपने कैपिटल को क्या करना होगा? एडजस्ट करना होगा. ओके, अपने कैपिटल को फिर से चेंज करना होगा, रीअरेंजमेंट करनी होगी कैपिटल की. सो फॉर दैट पर्पस
टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, नए फर्म का, न्यू फर्म का जो भी टोटल कैपिटल होगा उनका, इट विल बी डिवाइडेड among the continuing partners in their new profit sharing ratio. Now in our case or in our example, two continuing partners are there, partner A and partner B. Okay, so if total capital of the firm is 5 lakhs rupees, okay, total capital of new firm का total capital is fixed 5 lakhs rupees. Okay, so it will be divided or it will be distributed among two partner, partner A and partner B. These are continuing partner in their new profit sharing ratio. Now suppose new profit sharing ratio is 3:2, 3:2. Okay, so it will be distributed among A and B continuing partner as rupees 5 lakh का 3:2 करो, 5 lakhs into 3/5, it will be 3 lakhs rupees. Okay, and for B 5 lakhs into 2/5, it will be 2 lakhs rupees. Okay, so this is how total capital of the firm is divided among the continuing partner in their new profit sharing ratio. Okay, कैपिटल एडजस्ट करने के लिए कंटिन्यूइंग पार्टनर का कैपिटल हमें एडजस्ट करना होगा. सो उस पर्पस के लिए हमें फर्म का कैपिटल कंटिन्यूइंग पार्टनर में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से क्या करना होगा, डिवाइड करके देना होगा. ओके, देन न्यू कैपिटल बैलेंस ऑफ एवरी कंटिन्यूइंग पार्टनर, ओके, इज कंपेयर्ड विथ लेटेस्ट कैपिटल बैलेंस ऑफ एवरी कंटिन्यूइंग पार्टनर. Now here, after dividing capital among the continuing partner को capital divide करने के बाद हमें क्या करना होगा? What will be the next step? Next step will be new capital balance of the continuing partner will be compared with the latest capital balance of continuing partner. Continuing partner का जो भी new capital balance होगा, ओके, उसका कंपैरिजन, उसकी तुलना किसके साथ की जाएगी? इट विल बी कंपेयर्ड विद लेटेस्ट कैपिटल बैलेंस ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर. नाउ व्हाट इज न्यू कैपिटल बैलेंस एंड व्हाट इज लेटेस्ट कैपिटल बैलेंस? नाउ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमने जो कैपिटल अकाउंट का टोटल किया है, ओके, इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, the total of all partners capital account balance. Okay, partners account के क्रेडिट साइड में पार्टनर्स के इंडिविजुअल पार्टनर का जो भी टोटल है, ओके, उसे कहा जाएगा लेटेस्ट कैपिटल बैलेंस. नाउ हियर ऑल ट्रांजैक्शन का जो भी टोटल होगा, फॉर एग्जांपल पार्टनर ए एंड पार्टनर बी का, हियर वी हैव टू कंसीडर ओनली continuing partner. We are going to talk about continuing partner here only. I am not talking about retiring partner C. C रिटायर हो चुका है, उसका हमें कैपिटल एडजस्ट नहीं करना है. ओके, सो कंटिन्यूइंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड का जो भी टोटल होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज अ लेटेस्ट कैपिटल बैलेंस. ओके, सो इट विल बी कंपेयर्ड विद न्यू कैपिटल बैलेंस. व्हाट इज न्यू कैपिटल बैलेंस? तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड का कंटिन्यूइंग पार्टनर का जो भी टोटल होगा, इन दिस केस कंटिन्यूइंग पार्टनर इज ए एंड बी, सो ए एंड बी के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड का जो भी टोटल होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज अ न्यू कैपिटल बैलेंस. ओके, बिकॉज पार्टनर ने न्यू कैपिटल. नाउ हियर एक चीज मैं बोलना भूल गया हूं, ओके, कि दैट total capital of the firm, okay, total capital of the firm is divided among the continuing partner in their new profit sharing ratio. Now this is opening balance of capital. ये हमें last year के balance sheet से मिला है. So we have recorded here as a by balance brought down in all partners. Okay. Now total capital of the firm, that is closing capital. अब जो भी फर्म का नया बैलेंस होगा, कैपिटल का बैलेंस होगा,
it will be called as a new capital. Okay, it will be the closing capital. Okay, नए फर्म का जो भी कैपिटल होगा फॉर पार्टनर ए एंड पार्टनर बी, it will be closing capital. So total balance of capital of the new firm will be distributed among the continuing partner. We will record in capital account debit side. अगर ओपनिंग बैलेंस है तो हमें कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में रिकॉर्ड करना है, वो तीनों का होगा. क्लोजिंग बैलेंस ओल्ड पार्टनर का ही होगा. ओके, सॉरी, क्लोजिंग बैलेंस विल बी फॉर continuing partner, that is total capital of the firm. So here we will write closing balance to balance carried down. जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, ये किसमें हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है? कंटिन्यूइंग पार्टनर में ही डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि आगे जाके वो बिजनेस को रन करेंगे, ओल्ड पार्टनर चला गया है. ओके, so total capital will be distributed among continuing partner and that will be the closing capital, and that closing capital we have to transfer in liability side of the balance sheet. ये closing balance हमें कहाँ ट्रांसफर करना है? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में ट्रांसफर करना है. जो बैलेंस शीट किसका बनेगा? अब न्यू पार्टनर का बनेगा, पार्टनर ए एंड पार्टनर बी, जो दोनों कंटिन्यूइंग पार्टनर होंगे. ओके, so that closing balance of capital of continuing partner will be transferred to liability side of the balance sheet. उसमें आपको रिटायरिंग पार्टनर का बैलेंस लिखने की जरूरत नहीं होगी. न्यू बैलेंस शीट में आप कंटिन्यूइंग पार्टनर का ही कैपिटल रिकॉर्ड करोगे. ओके, सो व्हाट पॉइंट वी आर डिस्कसिंग बिफोर, हम किस पॉइंट के ऊपर चर्चा कर रहे थे कि after distribution of capital or after dividing capital among the continuing partner, we have to compare new capital balance of continuing partner with latest capital balance of the continuing partner. मतलब continuing partner का new capital balance जो होगा वो किसके साथ हम कंपेयर करेंगे? उनके लेटेस्ट कैपिटल बैलेंस के साथ. कंटिन्यूइंग पार्टनर का जो भी लेटेस्ट कैपिटल बैलेंस होगा उसके साथ हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे. नाउ आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू व्हाट इज न्यू कैपिटल बैलेंस एंड व्हाट इज लेटेस्ट कैपिटल बैलेंस. दोस बैलेंसेस व्हिच आर रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसका जो टोटल होगा कंटिन्यूइंग पार्टनर के क्रेडिट साइड के एवरी कंटिन्यूइंग पार्टनर के क्रेडिट साइड का बैलेंस का जो भी टोटल होगा दैट विल बी कॉल्ड एज अ लेटेस्ट कैपिटल बैलेंस. और कैपिटल अकाउंट कंटिन्यूइंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड का जो भी टोटल होगा, ओके, दैट विल बी कॉल्ड एज अ न्यू कैपिटल बैलेंस. ओके, सो दैट विल बी कंपेयर्ड विद ईच अदर. दोनों को क्या किया जाएगा? कंपेयर्ड किया जाएगा. ओके, न्यू कैपिटल बैलेंस ऑफ एवरी कंटिन्यूइंग पार्टनर will be compared with latest capital balance of every continuing partner. Now after this comparison, when total of the latest capital balance of every continuing partner, if total of latest capital balance of every continuing partner is greater than total of new capital balance of every continuing partner, we will get surplus. Okay, once again I will explain you. Okay, if total of latest capital balance is greater, लेटेस्ट कैपिटल बैलेंस जो है कंटिन्यूइंग पार्टनर का, उसका टोटल मतलब क्रेडिट साइड के कंटिन्यूइंग पार्टनर का टोटल अगर डेबिट साइड से ज्यादा है, ओके, क्रेडिट साइड का लेटेस्ट कैपिटल बैलेंस का जो टोटल है वो अगर न्यू कैपिटल बैलेंस से ज्यादा है. फॉर एग्जांपल हमने ए के लेटेस्ट कैपिटल बैलेंस का टोटल किया है और उसमें से ए का न्यू कैपिटल बैलेंस माइनस किया है. ओके, सो डिफरेंस कहाँ आएगा? डेबिट साइड में आएगा. ओके, सो इफ द टोटल ऑफ बोथ कॉलम ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स ऑफ लेटेस्ट कैपिटल बैलेंस is greater than new capital balances of both continuing partner, we will get a surplus. Okay, अगर क्रेडिट साइड के कैपिटल अकाउंट के कंटिन्यूइंग पार्टनर के क्रेडिट साइड के टोटल से आप अगर डेबिट साइड का टोटल
माइनस करते हो, so you will get a surplus. Okay, that is surplus means excess fund, positive balance. Okay, now if the total of new capital balance, that is total of debit side of the partners capital account of continuing partner is greater than, ये टोटल ज्यादा है किससे, किसके कंपैरिजन में, is greater than latest capital balances of continuing partner, so we will get balancing figure here. हमें यहाँ पे डिफरेंस होगा, मिलेगा. डेबिट साइड का टोटल अगर ज्यादा है, डेबिट साइड का टोटल मतलब कंटिन्यूइंग पार्टनर के लेटेस्ट न्यू कैपिटल बैलेंसेस अगर ज्यादा है, so we will get difference in credit side, okay, and that difference will be called as a deficit. Okay, so when we will get surplus and when we will get deficit, once again we will revise. If the total of latest capital balance मतलब credit side वाला total, if the total of latest capital balance of every continuing partner is greater than total of new capital balance of every continuing partner, then we will get a balance. Okay, then we will get a difference. That difference will be called as a surplus. Okay, and if the total of new capital balances of continuing partner, total of new capital balance of continuing partner is greater than total of latest capital balance of continuing partner, then we will get a deficit. Okay, so debit side में अगर डिफरेंस आता है कंटिन्यूइंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, तो हम उसे क्या कहेंगे, सरप्लस कहेंगे. ओके, सरप्लस मींस एक्सेस फंड, पैसा हमारे पास एक्सेस में आया है, एक्सेस में मतलब ज्यादा है. एंड इफ देयर इज डिफरेंस इन कंटिन्यूइंग पार्टनर्स credit side of continuing partners capital account, then that difference will be called as a deficit. Deficit means shortage of fund कम है. Okay, now surplus that we have got in continuing partners debit side में जो difference है continuing partners का, okay, that surplus will be withdrawn by continuing partner. Okay, surplus will be withdrawn by continuing partner from the partnership firm. अगर surplus है तो continuing partner क्या करेंगे, उसे withdraw करेंगे from the partnership firm. बिजनेस से वो अपने लिए निकालेंगे, पैसा वो निकाल लेंगे. That is called surplus will be withdrawn by continuing partner. और that surplus अगर वो withdraw नहीं किया है तो क्या किया जाएगा, that surplus will be transferred to loan account or current account. Now here whatever surplus we have got, either it will be transferred to or either it will be withdrawn by continuing partner उस surplus को क्या करेंगे, withdraw करेंगे, खुद को ले लेंगे, बिजनेस उसे उन्हें क्या करेगा, पे करेगा. और that surplus अगर वो withdraw नहीं किया तो क्या किया जाएगा, that surplus will be transferred to partners current account or partners loan account. Okay, so here what I have mentioned, surplus that is excess fund can be withdrawn by continuing partners. Okay, or it will be transferred to partners current account or partners loan account. Okay, now if there is a deficit, where we will get a deficit in credit side, debit side का टोटल ज्यादा है continuing partner का. Okay, और क्रेडिट साइड का टोटल अगर कम है कंटिन्यूइंग पार्टनर का, तो वी विल गेट अ डेफिसिट. सो दैट डेफिसिट मींस शॉर्टेज ऑफ फंड, सो दैट डेफिसिट विल बी पेड बाय कंटिन्यूइंग पार्टनर्स. वो डेफिसिट कौन पे करेंगे, बिजनेस को, फर्म को, वो डेफिसिट कौन पे करेगा, कंटिन्यूइंग पार्टनर पे करेंगे. अगर सरप्लस है तो फर्म या बिजनेस कंटिन्यूइंग पार्टनर को पे करेगा. एंड इफ देयर इज अ deficit, then that deficit will be paid by continuing partner to the firm or to the business, or it can be transferred to loan account or
करंट अकाउंट या फिर उस डेफिसिट को कंटिन्यूइंग पार्टनर ने बिजनेस को पेड नहीं किया तो उसे करंट अकाउंट में या फिर लोन अकाउंट में क्या किया जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा. ओके, सो दिस इज हाउ वी हैव टू make adjustment of capital or rearrangement of capital of the continuing partners in their new profit sharing ratio. Okay, now here we are going to see some journal entries regarding adjustments of capital or rearrangement of capital of continuing partner. Okay, कंटिन्यूइंग पार्टनर के कैपिटल को रीएडजस्ट करने के बाद या उसे रीअरेंज एडजस्ट करने के बाद जो भी सरप्लस है या जो भी डेफिसिट है वो कंटिन्यूइंग पार्टनर को किस तरह से डिवाइड किया जाता है या दिया जाता है. ओके, उसके लिए हम कुछ जर्नल एंट्री क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे या फिर उसकी प्रैक्टिस करेंगे. नाउ फर्स्ट जर्नल एंट्री इज if surplus is paid to the continuing partner. Now first journal entry is if surplus is paid to the continuing partner. अगर continuing partner को surplus firm ने paid किया. Okay, now what do you mean by surplus is paid to the continuing partner? Now here we have got a surplus. Okay, so that surplus इज पेड, उसकी पेमेंट की है बिजनेस ने. कंटिन्यूइंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के डेबिट में जो भी सरप्लस आया, ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड और आई हैव ऑलरेडी मेंशन दैट सरप्लस विल बी विड्रॉन बाय कंटिन्यूइंग पार्टनर. मतलब बिजनेस या फर्म वो सरप्लस किसे पेड करेगा, कंटिन्यूइंग पार्टनर को पे करेगा इन कैश. सो दैट सरप्लस इज पेड, दैट इज इट इज पेड इन कैश टू द कंटिन्यूइंग पार्टनर. बिजनेस ने या फर्म ने अगर कंटिन्यूइंग पार्टनर को सरप्लस कैश में पेड किया तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, जर्नल एंट्री विल बी ये सरप्लस बिजनेस किसे पेड कर रहा है, कंटिन्यूइंग पार्टनर को पेड करेगा. सो जर्नल एंट्री विल बी कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट. दैट मीन्स कंटिन्यूइंग पार्टनर का जो सरप्लस था उसके लिए बिजनेस ने या फर्म ने उन्हें क्या पेड किया, कैश में पेमेंट किया है. ओके, किसे, कंटिन्यूइंग पार्टनर. नाउ हियर वी विल शो द इफेक्ट. नाउ इफ surplus is paid in cash. Okay, so what will be the effect in partners capital account? हमें कंटिन्यूइंग पार्टनर को पेमेंट करना है. सो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट. सो व्हाट विल बी द इफेक्ट इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट? अपने कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया है. We have debited partners capital account, so we will write in debit side. Here we will write to cash oblique बैंक अकाउंट. दैट मीन्स कंटिन्यूइंग पार्टनर को हमने क्या पेड किया, बिजनेस ने, हमने मतलब बिजनेस ने क्या पेड किया है, कैश पेड किया है. ओके, फॉर सरप्लस. नाउ if surplus on capital account is not paid, सरप्लस के लिए फर्म ने उन्हें कैश पेड नहीं किया, but it is transferred to their loan account or current account. Okay, if surplus is not paid in cash, okay, but that surplus is transferred to continuing partners loan account or current account. So what will be the journal entry? पहले केस में सरप्लस के लिए कंटिन्यूइंग पार्टनर को हमने क्या पेड किया था, कैश पेड किया था. लेकिन अगर फर्म ने कंटिन्यूइंग पार्टनर को सरप्लस के लिए कैश पेड नहीं किया और उसके जगह पे उन्होंने कैश के जगह पे
सरप्लस का अमाउंट कहाँ ट्रांसफर किया है, लोन अकाउंट को और करंट अकाउंट को ट्रांसफर किया है. सो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? अगेन कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, continuing partners capital account debit. Okay, continuing partners capital account debit to continuing partners, उन्हें सरप्लस में हम क्या दे रहे हैं, बिजनेस क्या पेड कर रहे हैं, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स. वो अमाउंट कहाँ ट्रांसफर होगी, सरप्लस की अमाउंट उसके लोन अकाउंट को ट्रांसफर होगी. सो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स लोन अकाउंट ऑब्लिक करंट अकाउंट. ओके, if surplus is not paid in cash and that amount of surplus is transferred to continuing partners loan account or current account, then entry will be continuing partners capital account to continuing partners loan or current account. Now we will show the effect in partners capital account. Now here partners capital account is debited, capital account को आप डेबिट कर रहे हो. सो डेबिट में आप क्या लिखोगे, इन डेबिट साइड विल राइट continuing partner loan or current account. So here we will write to loan oblique करंट अकाउंट. लोन को भी ट्रांसफर हो सकती है या फिर करंट अकाउंट को भी वो कंटिन्यूइंग पार्टनर के करंट अकाउंट को भी वो सरप्लस ट्रांसफर किया जा सकता है. ओके, नाउ इफ कंटिन्यूइंग पार्टनर ब्रिंग्स कैश टुवर्ड्स द डेफिसिट इन हिज बिजनेस, sorry, deficit in his account. Okay, if continuing partner brings cash, अब क्या हो रहा है, कंटिन्यूइंग पार्टनर को बिजनेस कैश नहीं देगा. जब सरप्लस होता है तो बिजनेस कंटिन्यूइंग पार्टनर को कैश देता है, जैसे हमने पहले केस में देखा था. ओके, नाउ इफ देयर इज अ डेफिसिट, डेफिसिट कब होगा, मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया था कि न्यू कैपिटल बैलेंस ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर इज ग्रेटर देन लेटेस्ट कैपिटल बैलेंसेस ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर. मतलब डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड का टोटल कैपिटल अकाउंट का कम है. सो आपको कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में डिफरेंस आएगा. ओके, सो दैट विल बी कॉल्ड एज अ डेफिसिट. नाउ दैट डेफिसिट ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर will have to, that means for deficit continuing partner have to pay cash to the firm. ओके, कंटिन्यूइंग पार्टनर को क्या करना होगा, उस डेफिसिट के लिए, जो भी डेफिसिट है उनके अकाउंट में जो भी शॉर्टेज है उसके लिए वो फर्म को क्या पे करेंगे, कैश पे करेंगे. सो उसकी हमें यहाँ पे जर्नल एंट्री पास करनी है. इफ कंटिन्यूइंग पार्टनर ब्रिंग्स कैश, कैश कौन लाएगा बिजनेस में, कंटिन्यूइंग पार्टनर लाएंगे. ओके, टुवर्ड्स डेफिसिट इन हिज अकाउंट. ओके, सो जर्नल एंट्री विल बी, बिजनेस में कैश आ रहा है. ओके, सो कैश विल बी डेबिटेड, बिजनेस कैश पेड कर रहा था तो हमने कैश को क्रेडिट किया था, कंटिन्यूइंग पार्टनर को हमने कैश पेड किया था. तो एंट्री थी कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट. ओके, नाउ बिजनेस में कंटिन्यूइंग पार्टनर बिजनेस को कैश देंगे उनके डेफिसिट को रिकवर करने के लिए. सो जर्नल एंट्री विल बी, कैश आएगा, कैश विल कम्स इन. So journal entry will be cash bank account debit, cash bank account debit to continuing partners capital account, cash bank account debit to continuing partners capital account. Okay, now here cash is paid by continuing partner to the business. Okay, so we have to show the effect in capital account. ये effect हम capital account में show करेंगे. Now here capital account is credited, capital account को आपने credit किया है. So we will record that transaction in capital account credit side. We will write by cash bank account. That deficit is paid in cash by continuing partner. continuing partner ने
डेफिसिट कैश में पेड किया है फर्म को, ओके। नाउ इफ डेफिसिट इज नॉट पेड इन कैश, कंटिन्यूइंग पार्टनर ने डेफिसिट को कैश में पेड नहीं किया है, बिजनेस में कैश पेड नहीं किया है उनके डेफिसिट के लिए। So if deficit is transferred to loan account or current account, so in this situation, deficit will be transferred to their loan account or current account. Okay. So what will be the journal entry? Now, continuing partner फर्म को कैश पेड नहीं कर रहे, so उसका जो भी डेफिसिट होगा वो कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा, उसके लोन अकाउंट को ट्रांसफर किया जाएगा, उसके करंट अकाउंट को ट्रांसफर किया जाएगा। सो जर्नल एंट्री विल बी continuing partners capital, sorry, loan account oblique current account debit, continuing partners loan account or current account debit to continuing partners capital account, to continuing partners capital account. That means डेफिसिट के लिए कंटिन्यूइंग पार्टनर ने फर्म को कैश पेड नहीं किया है एंड दैट्स व्हाई उनका जो भी अमाउंट था डेफिसिट का वो फर्म ने कहाँ ट्रांसफर किया, उनके लोन अकाउंट को या करंट अकाउंट को ट्रांसफर किया। सो वी हैव टू शो दैट इफेक्ट इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नाउ हियर कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड, so we will show that effect in capital account credit side. We will write here by loan account oblique current account, by loan account oblique current account, okay. Now that amount of loan account or current account, इसका इफेक्ट आप कहाँ ट्रांसफर करोगे? It will be transfer in partners, sorry, it will be transfer in asset side of the balance sheet. ये जो अमाउंट है लोन अकाउंट करंट अकाउंट, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर का डेफिसिट का अमाउंट हमने उनके लोन अकाउंट को ट्रांसफर किया था या करंट अकाउंट को ट्रांसफर किया था, इसका इफेक्ट हमें न्यू फर्म के बैलेंस शीट के असेट साइड में शो करना है, ओके। दैट मीन्स ये जो लोन अकाउंट शो कर रहा है वो कंटिन्यूइंग पार्टनर ने क्या किया है, बिजनेस से लिया हुआ है, ओके। सॉरी, बिजनेस ने कंटिन्यूइंग पार्टनर को क्या दिया है, लोन दिया हुआ है, ओके। सो दैट विल बी द असेट फॉर द बिजनेस, ओके। नाउ दिस लोन which we have recorded in debit side of partners capital account will be transferred to the liability side of the न्यू बैलेंस शीट। न्यू बैलेंस शीट जो आप प्रिपेयर करोगे उसके लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करोगे, बिकॉज दैट अमाउंट ऑफ लोन विच इज टू बी पेएबल बाय फर्म और बिजनेस टू द कंटिन्यूइंग पार्टनर। ये लोन का अमाउंट आप लायबिलिटी साइड में शो क्यों कर रहे हो, क्योंकि सरप्लस जो एडजस्ट किया था हमने, ओके, वो अमाउंट जो हम लोन अकाउंट को या करंट अकाउंट को ट्रांसफर कर रहे हैं करंट अकाउंट के, वो फ्यूचर में बिजनेस को किसे पे करना है, कंटिन्यूइंग पार्टनर को पे करना है। सो दैट विल बी रिकॉर्डेड इन लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, ओके। एंड इफ लोन अमाउंट इज ट्रांसफर इन क्रेडिट साइड में आप अगर लोन अकाउंट को शो करते हो, दैट विल बी रिकॉर्डेड इन असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। सो दिस इज हाउ वी हैव टू शो और वी हैव टू रिकॉर्ड all these transactions related to adjustment of capital or rearrangement of capital after retirement of the partner, okay। क्वेश्चन को अब जब हम सॉल्व करेंगे तो ये सब चीजें आपको इजी लगेगी, समझ में आएगी, ओके। अप टू नाउ इन चीजों का आप क्या करो, फोकस करो, समझ के लो, ओके। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।